Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. Now, in this video, we will be talking about Equality, Class 7, NCERT Chapter 1. Now, when we were discussing Class 6, Chapter 3, in which we were talking about the features of a good government, how a government can run smoothly, we talked about 4 things. We talked about the people's participation, we talked about the power of the government to resolve the conflicts, we talked about equality and justice. These 4 things we have to have for a smooth functioning of a government. So we have been talking about equality here and there, but in this chapter we are going to talk about the constitutional provisions about the equality and also the true picture of in our country, whether equality really exists in the political sense or in the social sense, or be it in a economic on the economic platform. Now, the Constitution of India guarantees equality to all its citizens. Despite this, the daily lives of people in India are far from equal. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इक्वालिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स, लेकिन हकीकत जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, दैट इज समथिंग एल्स. So we will discuss the need for equality through highlighting the inequalities that continue to be practiced and experienced by various communities. तो हम need for equality को डिस्कस करेंगे inequalities को डिस्कस करते हुए. We will be highlighting the inequalities कि क्या क्या inequalities exist करती हैं, and then we will derive from it the need for equality. जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं या डिफरेंट कास्ट्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, हाउ दे फेस इनइक्वालिटी. सो बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज इक्वालिटी and why is equality important in a democracy. So we will be talking about these 2 things in this chapter. Now, one of the more common forms of inequality in India is the caste system. जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है इंडिया में, दैट इज caste system. Especially if you are living in a rural area, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. शुरू से ही आप अगर गांव में रह रहे हैं तो आप you have learned to live with that inequality. अगर छोटी जात से हैं तो यू नो कि आप जो है आपके वेल्स अलग हैं, आप जो है वो हायर कास्ट के जो वेल्स हैं उनसे पानी नहीं ले सकते, यू कैन नॉट गो टू द टेम्पल्स. सो वहाँ यू एट अ वेरी अर्ली स्टेज यू लर्न टू लिव विद इट. But if you live in an urban area, you might think that people no longer believe in caste. हम अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग शायद ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो ऐसे कास्टिज्म वगैरह नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, एंड सो देयर इज नो इनइक्वालिटी. लेकिन ये इनइक्वालिटी कहीं पेपर पे नहीं है, ये इनइक्वालिटी हमारी थॉट्स में है. यू आर हाईली मिस्टेकन इफ यू थिंक कि अर्बन एरियाज में जो है इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती है. If you see matrimonials shown from a leading, I'll be flashing those matrimonial के जो in a leading newspaper जो matrimonial का जो advertisement है वो मैं I'll be flashing those in the next slide, and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban India. जो हम सोचते हैं कि अर्बन एरियाज में तो वी आर हाईली एजुकेटेड एंड एलीट क्लास एंड वी आर एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, तो आई एम सॉरी, वी आर हाईली मिस्टेकन. अब देखिए किस तरह से ये इनइक्वालिटी हमारी थॉट्स में है. हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं कि वी आर एजुकेटेड और ये सब बातें गाँव में होती होंगी, हमारे यहाँ नहीं होती. तो जस्ट हैव अ लुक. नाउ see, these are some of the advertisements in the matrimonial. Alliance invited for 32 5'4" tall
फेयर ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ आप कोई भी देखेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो सभी को फेयर और ब्यूटीफुल चाहिए। टॉलनेस अगेन डिपेंड्स अपॉन द ग्रूम्स हाइट, लेकिन सभी को फेयर चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ कहने की बात है। अगर प्रैक्टिस में इसको देखें, अगर हमारे साथ ये हो तो शायद हम भी फेयर ब्यूटीफुल कहेंगे। बात हो रही है इक्वालिटी की, मतलब कहीं ना कहीं जो गोरा रंग है, जो कलर की बात जो आती है, वो देयर, दैट इज देयर। एंड देन when we talk about the, now here see the irony of it is, यहाँ लिखा है caste no bar। अब आप यू आर बिहेविंग लाइक एन अर्बन एजुकेटेड पर्सन, कास्ट नो बार। जो है कास्ट जो है कोई भी कास्ट चलेगी। और उसके साथ ही देख लीजिए क्या लिखा है, SC ST एक्सक्यूज। सो कैन यू सी द आयरनी ऑफ इट, कास्ट नो बार बट SC ST काइंडली एक्सक्यूज। सो you can see the caste discrimination. Okay, then we'll come to this जो तमिल ब्राह्मण्स की बात करें तो और भी ये एक चीज थी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप देखिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी वो नीचे तक कैसे पेनेट्रेट हो रहा है। टॉल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम 1981 born नेथु वत्सपा गोत्रम। अब यहाँ पे गोत्र भी स्पेसिफाई किया हुआ है, स्वाति स्टार यानी स्वाति नक्षत्र, जो पूरी कुंडली यहाँ पे एक तरह से है कि टॉल फेयर है वो, और गोत्र भी दिया हुआ है और उसके साथ साथ नक्षत्र भी दिया हुआ है। मतलब यू वांट अ ब्राइड अकॉर्डिंग टू द गोत्र और नक्षत्र के हिसाब से चाहते हैं। तो वेयर डू यू थिंक इज द इक्वालिटी इन ऑल दीज एडवर्टीजमेंट्स? तो ये एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट अ ग्लांस टू हैव अ लुक एट कि किस तरह की इनइक्वालिटीज हमारी थॉट्स में होती हैं। जब वो हमारी थॉट्स में होती हैं तो वो हमारा व्यवहार बन जाता है, और जब वो हमारा व्यवहार बन जाता है तो दैट टर्न्स इनटू एक्शन। नाउ ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से अर्बन एलीट के दिमाग में इनइक्वालिटी बसती है। नाउ वी विल कम टू इनइक्वालिटी किस किस तरह से और किस किस फॉर्म में हो सकती है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 पीपल है। एक तो कांताबाई है, हाउसमेड है, ठीक है। Then we will be talking about Om Prakash Valmiki, quite a famous name. He's a famous Dalit writer, and in his autobiography, Juthan. Now here you also get to know about the name of his autobiography, Om Prakash Valmiki, and who is he, like Dalit writer, कौन थे वो, and then his autobiography named Juthan. उसमें उन्होंने लिखा है, I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When I was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. Now these are, he is a very famous person and he talks, जैसे हमने एक वीडियो में देखा था कि हाउ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, हाउ ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो है इनइक्वालिटी कैसे उन्होंने फेस की। तो इसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि भी बता रहे हैं कि उनको जो है बचपन से ही क्लासरूम में अलग बिठाया जाता था, जमीन पे बिठाया जाता था और सबसे पीछे बिठाया जाता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। और बिना कारण के भी कई बार मेरी पिटाई हो जाती थी, एंड आई वाज आस्क्ड टू क्लीन द school as well as the playground. Right in the childhood, he faced discrimination, he faced inequality. उसके बाद एक और इस बुक में जो है जिक्र है एक अंसारी कपल का, जो घर किराए पे चाहते थे और उनको जो है घर किराए पे नहीं मिला बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, कि ये लोग जो हैं ये फिश कुक करते हैं और जनरली लोग जो है रिलीजन के आधार पे भी पूछते हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, बनिया हो। पीपल हैव डिफरेंट एप्रीहेंशंस अबाउट डिफरेंट कास्ट्स, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दिमाग आपका कहीं पे भी इनइक्वालिटी हो सकता है। अगर अच्छा मुसलमान है, ठीक है, मीट बनाएगा, और बंगाली है मीट बनाएगा, आप हिंदू हैं तो अस्वच्छ हो जाएगा, काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन बनिया है तो टाइम पे किराया नहीं देगा, जाट है
तो बड़ा तेज होगा, तो कुछ भी मतलब आप एक धारणा जो बना लेते हैं, सो दिस इज इनइक्वालिटी इन थॉट्स। जब आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है तो यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल इन इक्वली, यू काइंड ऑफ मार देयर डिग्निटी, उनकी डिग्निटी को आप चोट पहुंचाते हैं। इसी तरह से वी टॉक्ड अबाउट वाल्मीकि, वी टॉक्ड अबाउट अंसारी कपल। कांताबाई है, वो हाउस पोएट है, उसको इक्वल राइट टू वोट है, बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो लाइन में खड़ी होती है वोट देने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, जहाँ जिन साहब के घर में काम करती हूँ वो भी इसी लाइन में खड़े हैं, तो शी गेट्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक उसकी डिग्निटी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है एक बूस्ट मिलता है। लेकिन जब उसको जाके अस्पतालों में लाइनों में लगना पड़ता है, और उधर से जब वो काम पे जाती है उसको डांट खानी पड़ती है, तो शी फील्स कि ये बाबूजी का बच्चा जब बीमार होता है तो फटाफट घर में डॉक्टर आ जाता है और उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, और हॉस्पिटल्स में प्राइवेट ट्रीटमेंट करा लेते हैं, और मैं जो है अपने बच्चे को लेके इधर उधर घूम रही हूँ और मुझे डांट भी खानी पड़ रही है कि मैंने छुट्टी क्यों ली। सो ये जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो नहीं है उसके पास। तो कई बार पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हम सबके पास है, एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू वोट, एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू वॉइस आवर ओपिनियंस, टू फॉलो एनी रिलीजन, दिस इज ऑल पॉलिटिकल इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। लेकिन व्यवहारिकता कुछ अलग है। सो देयर इज नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, अब ये सारी चीजें जो समाज में इनइक्वालिटीज हैं, उससे क्या होता है कि एक जो डिग्निटी होती है लोगों की वो वॉयलेट होती है। राइट इन द चाइल्डहुड इफ यू आर मेड टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम और आपको बाकी लोगों से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, तो एक आपकी कहीं पर्सनालिटी में वो चीज बाद में भी रह जाती है। यू फील दैट यू आर नॉट इक्वल विद द अदर्स। सो वो जो चीज है वो दिस violates your dignity. So the caste we are born into, the religion we practice, the class background, whether we are male or female, हम कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, ये सारी चीजें जो हैं they determine that why people are treated unequally. ये कारण है, कास्ट एक कारण है, रिलीजन एक कारण है, जेंडर एक कारण है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक कारण है। These are the factors why people are treated unequally. Now, when persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris were violated because of the way in which they were treated. So all these things lead to the violation of their dignity, and they are treated unequally. So कहीं ना कहीं जो थॉट्स में हमारी इनइक्वालिटी है वो दूसरे को आहत कर सकती है। वो जिंदगी में कितना भी ऊंचा जो है ओहदा प्राप्त कर ले, बट दीज थिंग्स रियली पिंच, वो बातें याद रह जाती हैं। नाउ वी विल, दिस वाज अ कंसेप्चुअल, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि ये इनइक्वालिटी आती कहाँ से है। हमने तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ना, पूरा अधिकार दिया है इक्वालिटी का, लेकिन उसके बाद भी हम अनइक्वल क्यों हैं? तो let us talk about equality in Indian democracy. Now, the Indian constitution recognizes every person as equal. That means every individual in the country, including male and female, persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, all are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It does not. इसका मतलब ये नहीं है इतनी सारी हमने जो है किसी भी तरह से जो है वो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस में इनइक्वालिटी नहीं रहती है। इट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, इट इज देयर, but at least in democratic India the principal equality of all the persons is recognized. इनइक्वालिटी, हम ये कहेंगे कि फिर संविधान में जो इक्वालिटी की बात कही उसके मायने ही क्या है? नहीं, इनइक्वालिटी तो फिर भी होती है, नहीं, इनइक्वालिटी है, लेकिन कम से कम इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस रिकॉग्नाइज तो है। एक पर्टिकुलर हद के बाहर आप उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज तो कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा इल ट्रीटमेंट आपके साथ होता है तो लोग कम से कम जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये राइट तो है, दे कैन स्पीक अगेंस्ट इट।
Now, this recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. अब हम देखते हैं कि Constitution में किस तरह से क्या क्या provisions दिए हैं constitutionally. Number one is that every person is equal before the law. सभी लोग जो हैं वो every person is equal. जो लॉ के कानून के समक्ष जो है सभी सेम है. That means to जो president of the country, to Kantabai, a domestic worker, everybody has to obey the same laws. You are आजकल जो आप देख रहे हैं आर्यन खान का जो उसको गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स केस में, सो कहीं ना कहीं एक जो छोटी जात के लोग हैं या मतलब इवन द नॉर्मल पीपल, कहीं ना कहीं एक वो है कि हाँ भाई कानून व्यवस्था है, और देखो इतने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा होते हुए भी सेम जो है लॉज आर applicable to everyone and everybody has to obey the same laws. No one can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. This we have already talked about कि किसी भी basis पे discrimination नहीं होगा. Now, the equality also, इसको equality को और एक broader perspective दिया गया कि खाली मतलब एक टेक्निकल लैंग्वेज तक नहीं सीमित रखा गया, उसको खोल करके और आगे विस्तृत किया गया कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. जो हम बात कर रहे थे कि टेम्पल्स में नहीं जा सकते और वेल्स नहीं यूज कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है. And all persons can use publicly available wells, roads, bathing ghats. कहीं पे भी जो है आप रोड्स को, बेदिंग घाट्स को, वेल्स को सभी समान रूप से उसको यूज कर सकते हैं. Untouchability has been abolished. This is all constitutionally. व्यवहारिकता कहाँ रिमोट एरियाज में, गांव में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. नाउ ये सब काम करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस इक्वालिटी की जो बात करी, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली जो है गारंटी किस तरह से करते हैं. नाउ when we talk about the implementation part, there are two ways in which the government has tried to implement equality that is guaranteed in the constitution. अब इस equality को implement करने के लिए government क्या करती है? एक तो laws बनाती है by making laws, then through government programs or schemes to help disadvantaged communities. एक तो laws बना करके कि सभी इक्वालिटी है, आर्टिकल्स, लॉज बना करके टू गिव द प्रोविजंस टू ऑफ इक्वालिटी टू ऑल. देन थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. एक इक्वालिटी का पहलू ये भी है कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बी इट टू एजुकेशन, बी इट टू एनी अदर थिंग, ताकि जो डिसएडवांटेज लेवल है, और यहीं पे आता है रिजर्वेशन का भी एक कंसेप्ट कि इक्वालिटी जो है उसमें मतलब जो डिसएडवांटेज लोग हैं या पीपल बिलोंगिंग टू द socially disadvantaged or the economically disadvantaged groups, उनको रिजर्वेशन ला करके at par with the general public एक इक्वालिटी स्थापित करने की हम कोशिश करते हैं. So दो तरह से ये चीजें होती हैं, एक लॉज बना के, एक ऐसी स्कीम्स बना के टू so that every person is treated equally, and various schemes are launched to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. तो इस तरह से जो है एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है समाज में, कह लीजिए, या किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से वर्क करती है, टाइम टू टाइम अपने लॉज को मॉडरेट करती है, उनको मॉडिफाई करती है, सो दैट द इक्वालिटी इज एस्टैब्लिश्ड.
ये सब चीजें धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में, तो ये सारी चीजें जो हैं उससे निकल करके आती हैं कि किस तरह से इक्वालिटी को एक प्रोग्राम्स लॉन्च करके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को जो है व्यवहारिकता में लाया जाए। नाउ इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब ये नहीं है कि ये जो इनइक्वालिटी का इशू है हमारे ही देश में है, कि सब कुछ जो है वो हमने ही मतलब इंडिया में जो है वो क्योंकि इतनी ज्यादा कास्ट है, इतने ज्यादा रिलीजन है, तो यहाँ पे ही ये मौजूद है इनइक्वालिटी। हकीकत में ये जो इशू ऑफ इक्वालिटी है ये बाकी की डेमोक्रेसीज में भी रहा है, और समय समय पे लोगों ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई है। साउथ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या था कि एक तो उनके अपने इनहैबिटेंट्स थे, और दूसरे जो थे अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो अफ्रीकन लाए गए थे अमेरिका में और वहीं सेटल हो गए थे। तो यू कैन से द ब्लैक पीपल, तो वहां जो था उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली कह दिया कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन अगर किसी बस में दोनों साथ सफर कर रहे हैं और अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और वो बैठे हुए हैं, और कोई मान लीजिए अमेरिकन खड़ा हुआ है, तो उसको सीट देनी पड़ती थी इन लोगों को। जो ब्लैक लोग थे इनको उनको सीट देने के लिए खड़ा होना पड़ता था। और भी बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था उनको कि दे वर नॉट यू नो अलाउड टू गो टू पब्लिक प्लेसेस। जो इस तरह की जो हाई क्लास जो पर्टिकुलर जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स अमेरिकन थे उसको नहीं यूज करते थे, कर सकते थे। सो देयर वाज in 1950 there was a push for equal rights for African Americans। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इनके लिए एक वो किया गया, एक मूवमेंट चलाया गया। सो दिस मूवमेंट वाज नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। अब ये सिविल राइट्स मूवमेंट जो था ये 1950 में शुरू हुआ, और 1964 में जाकर के एक सिविल राइट्स मूवमेंट राइट्स एक्ट of 1964 बनाया गया, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin। तो हर कंट्री अपनी अपनी फाइट जो है वो करता रहा है, टाइम टू टाइम जो है उस चीज को वो व्यवहार में लाता रहा है, और उसके अगेंस्ट जो विद्रोह कह लीजिए या जो मूवमेंट्स हैं they were there so that demanding equality from its government। Now we lastly we will talk about जो मेन हमारा आर्टिकल है कि ये सारी इक्वालिटी और ये सारी चीजों की जो बात करते हैं, तो we will be talking about आर्टिकल 15। although आर्टिकल 15 से लेके 18 तक जो है it talks about equality only। so but here in this chapter we will be talking only about article 15 of the Indian Constitution on equality। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहीं पे भी आप पैदा हुए हैं, कश्मीर में पैदा हुए हैं या आप कहीं बिहार में पैदा हुए हैं, किसी भी बेसिस पे आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी तरह का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे नहीं होगा। नाउ दिस इज द टेक्निकल the language of article 15। the state shall not discriminate any citizen on grounds only on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। then no citizen shall on any ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability or restriction। इन चीजों पे जो जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है, इस बेसिस पे किसी को भी डिसेबल नहीं किया जाएगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी with regard to access of shops, access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment। कहीं पे भी इनको जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी इन बेसिस पे, रिलीजन के आधार पे या कास्ट या सेक्स। यहाँ खाली जो है जेंट्स को ही जाना है, लेडीज नहीं जा सकती। तो ये सारी चीजें जो हैं
this is guaranteed in Article 15, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. जो जनरल पब्लिक के लिए सरकार के पैसे से जो बनाया गया है, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज दी गई हैं सरकार के पैसे से जो बनी हैं, उन सब पर सभी का समान रूप से अधिकार है. So this is the reality. This is these are the constitutional provisions on equality in our country, along with the inequalities which exist at lower levels or in our thoughts, in our functioning. So this is the ground reality of equality. So we are over with this chapter. We'll be meeting in the next video with the next chapter.